آپ اگر دل کے مریض ہیں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جتنی ذمہ داری آپ کے تیماردار کی ہے اس سے زیادہ ذمہ داری آپ کی اپنی خود بھی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ہم وہاں سے دوائیں لے کے آ گئے اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے جب تک ہم ڈاکٹرز کی ہدایات پر مکمل طور پہ عمل نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جب بھی دل کے کسی مریض کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، چھاتی میں درد ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس خراب ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، کمزوری کا احساس ہوتا ہے، پسینے آتے ہیں، مپلی ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے یا پاؤں پر سوجن آتی ہے، تو عام طور پہ تو لوگ ہمارے پاس ہسپتالوں میں آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر پر بیٹھے رہتے ہیں، جو ان تمام علامات ہونے کے باوجود نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور انہیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گیس کی تکلیف ہے یا کوئی پٹھے کا درد ہو گیا ہے یا معدے کی تیزابیت ہو گئی ہے یا یہ کوئی ہمیں شدید ذہنی دباؤ ہو رہا ہے۔ یعنی گھر پر بیٹھ کے ان تمام علامات کو نظر انداز کر کے خود ہی سے مینجمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور آج کل جو سب سے بڑا ایشو ہے جو میں آپ کو اپنے ہر پروگرام میں بتاتا ہوں، وہ ہے لوگوں کا خود سے علاج کرنے کا رجحان۔ جب بھی کوئی علامت ہوتی ہے وہ گوگل کرتے ہیں، اپنی علامات لکھتے ہیں، وہاں سے جو جواب آتا ہے اس پر وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ایک مریض جن کو ہارٹ فیلئر ہے، ان کے پھیپھڑوں کے اندر بار بار پانی آتا ہے، اب ان کے گھر والے مجھے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ان کو دوائیں لکھ کے دیتے ہیں، یہ ایک تو ہر دوا کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں نیٹ پہ جا کے کہ اس دوا کی کیا اثرات ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات یہ وہاں پڑھ لے یا سن لے کہ اس دوائی کی وجہ سے کوئی برا ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ اس دوائی کو ہم سے پوچھے بغیر خود ہی سے بند کر دیتے ہیں۔ رات کو ان کا سانس خراب ہونے لگتا ہے، پھر ہمیں آوازیں دیتے ہیں کہ میرا سانس خراب ہو رہا ہے، مجھ سے لیٹا نہیں جا رہا، مجھے کھانسی آ رہی ہے، مجھے بے چینی ہے، کچھ کرو میرے لیے، خدا کے لیے کچھ کرو میرے لیے۔ اور اس وقت ہم لوگ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ بتائیں رات کے 2 بجے ہم ان کو کہاں لے کے جائیں۔ ہم ان کو بار بار کہتے ہیں کہ ابا جی آپ نے ان دواؤں کو جو ڈاکٹر صاحب نے دی ہیں پابندی کے ساتھ کھانا ہے، آپ نے کسی سے ڈسکس نہیں کرنا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان سے ڈسکس کریں، لیکن یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان صاحب کو جب میرے پاس داخل کیا گیا تھا، ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی بہت زیادہ آیا ہوا تھا، ان سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، ان کا سانس بہت زیادہ پھولا ہوا تھا، ان کے خون میں آکسیجن کی مقدار خطرناک حد تک کم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہونٹ، ان کے ناخن نیلے ہو رہے تھے، جسم ٹھنڈا تھا، نبض بہت کمزور تھی، بلڈ پریشر بھی ان کا نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ ہم نے ان کو ایمرجنسی طور پر مینج کیا اور الحمدللہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی، بہت بہتر ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے ان کا روٹین کا ٹریٹمنٹ جاری رکھا۔ تقریباً 3-4 دن کے بعد ہم نے انہیں گھر بھیج دیا۔ گھر جا کر انہوں نے ہمارے نسخے میں لکھی ہوئی ایک ایک دوا کو گوگل پہ سرچ کرنا شروع کیا کہ یہ دوا کس لیے استعمال ہوتی ہے، ان دواؤں کے فائدے کیا ہیں، ان دواؤں کے نقصانات کیا ہیں، ان دواؤں کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گوگل ہو یا کوئی اور سرچ انجن جہاں پر یہ باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں، اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب بھی ہم کسی دوا کے بارے میں بات کرتے ہیں، دوا کی پوری فارمیکو کائنیٹک ہوتی ہے، فارمیکو ڈائنامک ہوتی ہے، اس دوا کے بارے میں ڈاکٹر کو مکمل طور پہ علم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دوا کیسے دینی ہے،
किस मिकदार में देनी है, कितने वक्फे से देनी है, किस दवा के साथ मिला के देनी है, और इस दवा के अगर बैड इफ़ेक्ट्स होंगे तो क्या क्या होंगे, अगर बैड इफ़ेक्ट फौरी होंगे उसे हम कैसे मैनेज करेंगे, अगर वो बैड इफ़ेक्ट 2 हफ्ते के बाद होंगे उनकी क्या अलामात होंगी, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, और इन दवाओं के मुस्तकबिल में क्या असरात होंगे, ये सब चीज़ें डॉक्टर्स को पता होती है। लेकिन बाज़ लोग अपनी आदत से मजबूर होके अपने नुस्खे में खुद से रद्द बदल करके खुद भी तकलीफ में आते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी तकलीफ में लेके आते हैं। आप अगर दिल के मरीज़ हैं, आप ये बात ज़हन में रखिए कि जितनी जिम्मेदारी आपके तीमारदार की है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी अपनी खुद भी है। आप ये मत समझें कि हम डॉक्टर के पास गए, हम वहाँ से दवाएं लेके आ गए और हम ठीक हो जाएंगे। हम कभी भी ठीक नहीं होते जब तक हम डॉक्टर्स की हिदायत पर मुकम्मल तौर पे अमल ना करें, आपके तीमारदार आपका ख्याल ना करें, और इन सब से बढ़ के आप अपना ख्याल खुद ना करें। अगर आप दवाओं के मामले में संजीदा नहीं हैं, अगर आप वो खुराक नहीं लेते जो आपको बताई जाती है, अगर आप वो तमाम काम करते रहते हैं जिनसे आपको मना किया जाता है, तो याद रखिए आपके दिल की बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। आप पाकिस्तान में रह के इलाज करवाएं, आप बैरून मुल्क चले जाएं, वहाँ जाके इलाज करवाएं। जब तक आप इलाज के हवाले से बुनियादी चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे, आपकी बीमारी कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगी। हम अक्सर कहते हैं कि आपने पेट भर के खाना नहीं खाना, आपने खाना खाने के बाद तेज़ नहीं चलना, आप खाना खाने के बाद दौड़ें लगाना शुरू कर देते हैं, तो आपका सांस कैसे बेहतर होगा, आपका एंजाइना कैसे बेहतर होगा, आपको हार्ट अटैक का इम्कान कितना ज़्यादा हो जाता है अगर आप खाना खाने के बाद सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर देते हैं, तेज़ चलना शुरू कर देते हैं। बल्कि बाज़ लोगों को हमने ये देखा, वो कहते हैं कि मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ कि आज मैं कैसा हूँ, मुझे 2 महीने हो गए हैं दवाएं खाते हुए, आज मैं अपने आप को टेस्ट करूँगा, आज मैं दौड़ लगाऊंगा कि मेरे दिल की सेहत कैसी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका दिल 2 महीने के बाद कैसा है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मशवरा करें, वो आपके टेस्ट करेंगे, और अगर मुनासिब होगा वो आपका स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, वो कोई और टेस्ट आपको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन खुद से टेस्ट करना, अपने दिल की सेहत के बारे में जानना, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हमने एक बात और देखी है, ये हार्ट फेलियर के मरीज़ या वो मरीज़ जिनके दिल के वैल्व ख़राब होते हैं, या वो मरीज़ जिनके जिस्म में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, जिनको पेशाब आवर अद्वियात दी जाती हैं, वो अक्सर इन दवाओं को इस्तेमाल करने से इज्तनाब करते हैं। वजह कि जी सोशल इशू है। सोशल इशू ये है कि मैंने किसी के घर जाना है, अब अगर मैं पेशाब आवर दवा लेके किसी के घर जाऊंगा, मुझे बार बार पेशाब आएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके घर बार बार पेशाब के लिए जाऊं। उसका एक तरीका हो सकता है ये कि आप वहाँ से आने के बाद दवाई खा सकते हैं, या आप अगर दोपहर को दवाई लेते हैं, आप वो दवाई सुबह के वक्त ले लें। लेकिन दवा को आपने मिस नहीं करना। अगर आप अभी अस्पताल से आए हैं जहाँ पर आप दाखिल थे, हार्ट फेलियर की वजह से आपके फेफड़ों के अंदर पानी आ गया था और अब वहाँ से आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है, आप घर आ गए हैं, या घर आके आपका सांस बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपके घर में भी फंक्शन होता है और वहाँ पर आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि घर वालों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं, आपका सांस पहले ही बहुत ख़राब है, वहाँ पर आप जाके बैठेंगे, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। कोशिश करें कि आप वहाँ जाने से माजरत कर लें कि मेरा सांस बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं जा नहीं सकूँगा,
اور तीमारदारों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इन्हें फंक्शन में ना लेके जाएं। अगर आपका जाना बहुत ज़रूरी है और आप समझते हैं कि आपका सांस बेहतर है तो फिर आप जाएं, लेकिन वहाँ पर खाने पीने के हवाले से बहुत एहतियात करें। कहीं ये ना हो कि वहाँ पर आपके रिश्तेदार, आपके चाहने वाले आपसे कहें कि नहीं आज आप ये खा लें, आज आप चाय पी लें, बकरे का गोश्त खा लें, या कोई और ऐसी चीज़ आपको पेश कर दी जाए खाने के लिए जो बाद में आपके लिए तकलीफ का बाइस हो। आप अपने जिस्म के बेहतरीन जज हैं। याद रखिए, हर इंसान अपने जिस्म के बारे में बहुत जानता है, अपनी आदत के बारे में बहुत जानता है। हर एक को पता होता है कौन सी खुराक, कौन सा मौसम मेरे लिए बेहतर है, मैं कितना खाऊंगा तो मेरी तबीयत सही रहती है, मैं किस वक्त की दवा अगर मिस करूं तो मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हर मरीज को मालूम होती हैं। अगर आप दिल के मरीज हैं और आप एक बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप अपने मर्ज से दोस्ती कर लें, आप इन दवाओं से दोस्ती कर लें। यकीन करें, एक वक्त आएगा आपका मर्ज ख़त्म हो जाएगा, आपकी दवाएं कम हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि जो बातें डॉक्टर्स आपको कहते हैं आप उनकी बातों पर अमल करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। अपना और अपने ख़ानदान के अफराद के दिल की सेहत का बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि ज़िंदा रहें एक मजबूत, सेहतमंद और तवाना दिल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।